Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to continue with the third chapter of your civics, that is your role of government in the in health and health for all. In our last few classes, we have already studied that what were the challenges between in front of India after the independence. That is, there were malaria, tuberculosis, leprosy, high maternal and HIV virus were the major health problem that were there in front of India. Then after that, we have studied that there were certain other challenges before public health ministry, that is your epidemiological transition, then demographic transition, environmental changes, and there were the certain principles to which the government of India put forward for the for overcoming these problems. And there were four principles that were called the Alma Ata. And the first one was the universal access and coverage, the third one was the ground of equity, second one was the ground of equity, third one was the community participation in defining and implementing health agendas, and the fourth one was intersectoral approach to health. Then later on, we have studied about the role of the government within the health sectors, in which we had taken a glance of the health system. Then after that, we had taken up the health information system, and we had already seen that what do we mean by the health research system and how the government is developing the doing the research work in the field of health and public for the betterment of the public. Then later on, we had studied about the rules and regulations and how the government is implementing those rules and regulation for the better health condition of the citizen of India. Then later on, we have studied about the health promotional activities under which the government of India was celebrating certain days like Diabetes Day, Heart Day, which were there to promote the awareness among the people. Then later on, we had studied about the human resource development and the capacity development, that how the government of India can develop the better capacity of the better capacity of the health sector by opening new schools, new by providing better you can say better trainings to the doctors and all and other lower level health workers for looking after the health condition of the people. Then later on, we had studied of the scope of the further action in the health sector, that how there are then other scope that where the government of India has to work more, that is your mental health and school health. These were the things we had studied in our last class. In today's class, we're going to start with a new topic, that is your सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब हमारा जो सोशल लाइफ है, हमारी जो सोशल कंडीशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्थ जो हमको डिटरमाइन करती है कि हमारे हेल्थ कैसी होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहली है वो आपकी है लिविंग कंडीशन. कोई भी जो हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते. हेल्दी एनवायरनमेंट में इंक्लूड करता है आपका ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की और कम्युनिटी की दोनों की मदद से ही हो सकता है. देन सेकेंड वन इज़ योर अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग मतलब आपके शहर की जो प्लानिंग है वो बेटर वे में होना चाहिए, एफिशिएंट वे में होना चाहिए. हमको अर्बन एरियाज़ में रह करके भी हमें ऐसा ना हो कि हमारे घर इतने छोटे छोटे हों कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ बाहर से कोई हमारे यहाँ जो अच्छा वेंटिलेशन नहीं है. उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिजीज़ेस पैदा होने लगते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ट्यूबरकुलोसिस. देन उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट. मतलब जब जो भी मदर है, जो इसके वूम में बच्चा है, उसको अच्छी हेल्थ कंडीशंस देना, उसको अच्छी हेल्दी डाइट देना, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको भी अच्छी हेल्थ कंडीशन में उसको रखना, उसको आपके जो भी इंजेक्शंस हैं, जो भी उसको उसकी जो बीमारी से बचाने के लिए जो भी उसको वैक्सीनेशंस है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि हमारे यहाँ एक बेहतर यू कैन से सिटीज़न जो है वो बन सकें. देन नेक्स्ट वन इज़ योर फूड सिक्योरिटी.
मेजर। देखो हमारे यहाँ जो खाना है वो हमारे लिए हमारा बॉडी का यू कैन से कि फ्यूल है, और अगर वही अच्छा नहीं जाएगा, वही पोल्यूटेड फूड जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो जनरल हेल्थ है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरफ तो अपने जो भी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसको तो बेटर करना ही है, और एक और काम करना है, वो ये करना है कि फूड जो हम खाना खा रहे हैं वो बेटर कंडीशन में होना चाहिए, अच्छा और हेल्दी फूड होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ योर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। देखो हमारी जो कंट्री है वी आर अबाउट 1 करोड़, वी आर अबाउट 130 करोड़। सो हमारे यहाँ जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ह्यूज है। इस ह्यूज पॉपुलेशन को ऑफ कोर्स मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ये भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों के बीच में अवेयरनेस हो कि हम ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं नहीं, और जो पॉपुलेशन है उससे हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। देन नेक्स्ट वन इज़ योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो कोई भी काम वो गवर्नमेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, तो हम सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, और हमको अपनी एज अ जो सोसाइटी है, एज अ कम्युनिटी हमको काम करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें रोगी कल्याण समितिज़ बनी हुई हैं, जिससे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ही साथ मिलकर के गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जिससे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वो बेटर हो सके। देन प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो दो पूरी दुनिया में जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो अब उनको भी असिस्टेंस की, पैसे के फॉर्म में असिस्टेंस की, अच्छे मेडिसिन्स हैं या अच्छे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके भी फॉर्म में गवर्नमेंट को मदद चाहिए होती है, और इसकी मदद के लिए WHO है, यूनिसेफ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब मदद करते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे जो वर्क हैं वो कंडक्ट किए हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड जो वर्क थे कंडक्ट किए, जैसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन 1974, देन प्राइमरी हेल्थ केयर enunciated at Alma Ata in 1978, then eradication of smallpox in 1979, launch of polio eradication in 1988, FCTC rectification in 2004 and COPTA Act of 2005। ये कुछ एक ऐसे वर्क हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किए हैं विद द हेल्प ऑफ WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वर्ल्ड बैंक। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो गोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है आपके रूरल एंड अर्बन जो लोग हैं उनको इक्वल अमाउंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और वो बिल्कुल ही किसी को भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ जब उनको कोई हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़े, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, पुअर हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो, सबको इक्वल हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। तो दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, and for your question and answers I will going to forward it to your WhatsApp group. So for the next chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.